Class, first of all, a very good afternoon to all of you. So class, today I mean to say in this lecture, I am going to discuss with you the new chapter which is thermochemistry. So what is the thermochemistry? It is the branch of chemistry which deals with the heat changes involved in a chemical reactions. मीनस कि chemical reactions ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ना भी heat ਦੇ regarding ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ मतलब इन्वॉल्व हो रहा है, हीट चेंजेस इन्वॉल्व हो रही है मीनस इधर जी उत्थे हीट एनर्जी रिलीज होगी या फिर जी हीट एनर्जी की होगी अब्जॉर्ब हो जाएगी. दिस ऑल वी स्टडीड अंडर दिस थर्मोकेमिस्ट्री. सो रजे जेड़ा बेसिक हुंदा मतलब रिएक्शंस बेसिक केमिस्ट्री दी जेड़ी टाइप है जिस दे विच आपां डील करदे हैं एनर्जी चेंजेस जिस दे विच सारे एनर्जी चेंजेस आ जांदे ने हीट लाइट इलैक्ट्रिसिटी वो सब आंदा केमिकल काइनेटिक्स दे विच. ओके बट ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥਰਮੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਹੀਟ ਚੇਂजेस ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ. we are not going to deal with electricity or something else. So next have there are two type of reactions, exothermic reactions in which there is release of energy. So what is the definition of exothermic reactions? So the reactions I mean to say the chemical reactions which proceeds with evolution of heat energy or we can say that release of energy. सो वो वाली रिएक्शंस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. मींस सिस्टम ने ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤੀ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਗਾ ਹੀਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਫਰੋਮ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ. ਹੀਟ ਇਜ਼ ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम बिकॉज सिस्टम ने एनर्जी की रिलीज. सो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग. सो इत्थे रजे इहनू रिप्रेजेंट करन दा वे हैगा हीट नू रिप्रेजेंट करन दा हुंदा क्यू. इत्थे एनर्जी रिलीज हो रही है तो अगे माइनस दा जिहड़ा साइन आ जाऊगा. नेक्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दीज आर दोज रिएक्शन विच प्रोसीड विद अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी. मींस जिथे जिहड़ी हीट एनर्जी है वो अब्जॉर्ब हो जाए. हीट एनर्जी अब्जॉर्ब दा मतलब की है कि जिहड़ी हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम. इत्थे जिहड़ी आ हीट ट्रांसफर हो रही सी फ्रॉम सिस्टम मीन सिस्टम ने हीट ट्रांसफर करती. इत्थे की है सिस्टम को हीट आऊगी फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम. सो इनू रिप्रेजेंट करने का जिहड़ा वे है वो की हैगा क्यू. इस तो बाद हैगा कि जिहड़ी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस ने फॉर एग्जांपल ये जिहड़ी एग्जांपल हैगी आ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर. इत्थे डेल्टा एच दी वैल्यू नेगेटिव है. अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन की होगी एक्सोथर्मिक होगी. अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन की होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन. हुण आपां डेल्टा एच ही क्यों ले रहे हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ दी रिएक्शंस जदों आपां डील करनियां ने ओह आपां ओह वाली रिएक्शंस लवांगे जिहड़ियां कित्थे होणगियां कांस्टेंट प्रैशर ते. सो हुण अगर कांस्टेंट प्रैशर वाली कंडीशन है रिएक्शन कंडीशन कांस्टेंट प्रैशर ते है तो उत्थे आपां किहदे नाल डील करांगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. So I was discussing the topic that heat changes at a constant pressure are expressed in terms of enthalpy change. It means QP is equal to delta H. And what is delta H? Delta H the relation हैगा the sum of enthalpy of products minus sum of enthalpy of reactants. So this is the main formula for enthalpy change. So now in case of exothermic reactions as we discussed that Q is negative in case of exothermic reactions. So what happens if Q is negative then delta H is also negative. And under which condition delta H is negative? And this is negative means this whole is less than 0 and then enthalpy of reactants is greater than enthalpy of products. So under this condition delta H is equal to negative. So what happens in case of exothermic reactions? Q is positive and Q is positive only if delta H is positive. Delta H is positive if this whole term is greater than equal to 0. It means enthalpy of products is greater than enthalpy of reactants. So this is how we deal with exothermic and endothermic reactions.
Next, you should have the knowledge of standard state conditions. So what is a standard state? You already studied in your lower classes. What is the standard state conditions? The conditions at which pressure is 1 atmospheric pressure and tell me what is temperature, and temperature is 298.50 Kelvin. So these are known as standard state condition. So there is a relation between degree Celsius and Kelvin scale. 1 degree Celsius is equal to 273 Kelvin. So room temperature condition होंगे 25 degree Celsius, corresponding to temperature होगा 298.15 Kelvin. So delta H is enthalpy change. So अगर अजे थोड़े कोई रिएक्शन दी हुई है, जो आप प्रीवियस हम 2 एग्जांपल्स करके हटे सी एक्सोथर्मिक ते एंडोथर्मिक दे केस दे विच फर्स्ट रिएक्शन कीती सी ਆਪਾਂ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. सो फॉर्मेशन ऑफ वाटर मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है तो कोरोस्पोंडिंग टू दैट रिएक्शन एंथैल्पी चेंज ऑफ दैट रिएक्शन आर रिप्रेजेंट रिएक्शन. सो अगर ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ नॉट पाया होया इट मींस ये की रिप्रेजेंट करूगा, इट रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज. स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कदों की व्हेन ऑल reactants and products are in standard states. It means किया जदों जड़ी रिएक्शन हो रही है उस दे विच प्रोडक्ट्स ते रिएक्टेंट्स दोनों ही स्टैंडर्ड स्टेट्स. इट मींस दोनों दे कोरोस्पोंडिंग प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर होना चाहिए 298.15 Kelvin. So corresponding to standard state condition, the enthalpy change for any reaction is delta H. ऊपर नॉट पाएगा, so ये रिप्रेजेंट करता जी. So उस तो बाद एक पॉइंट है, this is very important point. So note down class, the standard molar enthalpy of every element in the most stable state is taken as 0. Okay, we discussed about a standard state condition. So the important conclusion निकल के आया जी इथों means किया the standard molar enthalpy change of every element in most stable state is taken as 0. Means कोई भी element है, for example अगर आप हाइड्रोजन की गल करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन जे मतलब केड़ी स्टेट दे विच ज्यादा स्टेबल हुंदा दसो, सॉलिड दे विच या गैस दे विच या लिक्विड दे विच. सो हाइड्रोजन दी जेडी मोस्ट स्टेबल फॉर्म हुंदी है वो हुंदी है गैसियस हाइड्रोजन. एंड ब्रोमीन किस फॉर्म च हुंदा, ब्रोमीन हुंदा जी लिक्विड स्टेट दे विच. आयोडीन किस दे विच हुंदा, आयोडीन हुंदा सॉलिड फॉर्म दे विच, ये सॉलिड आयोडीन हुंदा. एंड ब्रोमीन किस च हुंदा लिक्विड. सो कहने दा मतलब corresponding to these 3 molecules, these 3 elements, इन्हां दी जेडी मोस्ट स्टेबल स्टेट हैगी आ. सो इन्हां दे corresponding इन्हां केस दे विच जेड़ा एंथैल्पी चेंज होगा ओदी वैल्यू की रहने वाली आ, 0 रहने वाली आ. बिकॉज corresponding to these element इन्हां दी की है जे मोस्ट जेडी स्टेबल फॉर्म है, ठीक है. एंड एक होर केस करदे हैं अगर आपां, इन केस ऑफ एनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन 1 फॉर्म. सो वाली नूं की कहंदे जी, जदों कोई एलिमेंट एक तो ज्यादा फॉर्म्स दे विच एग्जिस्ट करदा ओनू की कहंदे आ एलोट्रोपिक फॉर्म. So in case of element exist in various allotropic form, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀ state
ज़्यादा स्टेबल होगी, मीनस ओ वाली एलोट्रोपिक फॉर्म जिहड़ी ज़्यादा स्टेबल होगी, उत्थे जिहड़ी आ जीरो वैल्यू होगी। किस दी जीरो वैल्यू होगी? इंथैल्पी दी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुसी पढ़िया होगा जी कार्बन दी जिहड़ियां एलोट्रोपिक फॉर्म। सो कार्बन दी दो एलोट्रोपिक फॉर्म हुंदियां ने। आउट ऑफ दीज ग्रेफाइट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज मोस्ट स्टेबल। सो कोरोस्पॉन्डिंगली ओदी जिहड़ी स्टैंडर्ड इंथैल्पी, स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी होगी, वो की होगी? जीरो। इट मीनस दो केस ने तुसी नोट डाउन करने। एक तो कोई भी एलीमेंट अगर किस दे विच हैगा ओदी मोस्ट स्टेबल फॉर्म दे विच, तां ओदी जिहड़ी मोलर इंथैल्पी चेंज है ओदी वैल्यू की होगी? जीरो। या फिर कोई एलीमेंट है जिहड़ा एलोट्रोपिक फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करदा, जिहड़ी एलोट्रोपिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी ओदे करस्पॉन्डिंग ओदी स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी दी वैल्यू की होगी? जीरो होगी। ओके, एक तुसी मरकरी दा केस पढ़िया होगा। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि मरकरी किस स्टेट दे विच ज्यादा स्टेबल हुंदी है? सो मरकरी इज स्टेबल इन गैसियस स्टेट, सॉरी लिक्विड स्टेट। मरकरी किस फॉर्म ज्यादा स्टेबल हुंदी है? लिक्विड फॉर्म दे विच। सो रुझे हुण अगर कोई एग्जांपल है कि हाइड्रोजन हाफ मोल प्लस आयोडीन हाफ मोल, it forms HI gas. So what is the standard enthalpy change of this reaction? हाँ जी, enthalpy change का हुने formula करवा के हटे हैं कि हुंदा sum of enthalpy of products minus sum of enthalpy of reactants. So इस reaction दे विच जिहड़े left hand sides ने वो की ने? reactants ने, जिहड़े right hand sides ने वो की ने? product ने। So sum of enthalpy of products minus sum of enthalpy of reactants. So products दे विच की होगा? enthalpy की दी होगी? HI। किस स्टेट दे विच लैनी है? स्टैंडर्ड स्टेट दे विच। माइनस हुण इत्थे देखो जी हाफ मोल है, सो हाफ होगी enthalpy हाइड्रोजन दी प्लस हाफ किस दी होगी? आयोडीन दी इन स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, सो हुण आपां करके हटे आ इत्थे जिहड़ी हाइड्रोजन आ वो गैसियस हाइड्रोजन की हुंदी आ? ज्यादा स्टेबल। सो इत्थे जिहड़ी हाइड्रोजन आ वो गैसियस फॉर्म दे विच, सो इहदा मतलब इहदी वैल्यू की हो जूगी? जीरो। सिमिलरली जिहड़ा आयोडीन हुंदा वो किस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? सॉलिड दे विच। इत्थे आयोडीन दी किहड़ी स्टेट है? सॉलिड। सो इहदी वैल्यू भी की होगी? जीरो। इहदा मतलब molar enthalpy of a reaction at a standard condition is equal to किदे इक्वल होगी? सिर्फ enthalpy of HI, means सिर्फ reactant दे इक्वल होगी। Okay, so this is how we calculate the numericals related to enthalpy change. बट एक चीज होर है जी तुसी याद रखियो कि जिहड़ी स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज हुंदी है, जिद्दां आपां हुणे रिएक्शन करके हटे आ ओदे विच जिहड़ी इंथैल्पी चेंज है वो किदे इक्वल होगी? इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हुण जिहड़ी आपां रिएक्शन करके हटे सी, सॉरी मैं रेज करती, इहदे विच हाइड्रोजन ते आयोडीन कंबाइन करके की बना रहे ने? HI। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਥੈਲਪੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਇੰਥੈਲਪੀ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਥੈਲਪੀ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। समझ रहे हो ना रजे? इत्थे बन की रहा HI। सो जे कोई चीज बन रही है ਇਹਦਾ मतलब कोई चीज उत्थे फॉर्म हो रही है तो ਉਹਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਇੰਥੈਲਪੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇੰਥੈਲਪੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਐਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਥੈਲਪੀ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यदि डेफिनेशन की होगी
the standard enthalpy of formation of any compound is the enthalpy change involved in a formation of 1 mole of compound. इत्थे भी की बन रहा सी 1 mole of compound in standard state from its element. ये जिहड़े elements लैने ने किस दे विच लैने ने जी standard condition दे विच. So समझ गए standard enthalpy of formation की हुंदी है. It is that enthalpy change of any compound is the enthalpy change involved in the formation of 1 mole of compound from its reactant having in standard state conditions. So हुण अगर थोड़े कोल जिवें कोई एग्जांपल लगा लो, वैसे इहदे विच भी enthalpy of formation हुंदी है, या एक होर एग्जांपल ले लो, formation of 1 mole of carbon dioxide from its elements. दोस्तों formation of carbon dioxide की जिहड़ी रिएक्शन हुंदी है वो की हुंदी है? सिंपल कार्बन सॉलिड स्टेट दे विच ऑक्सीजन गैसियस स्टेट दे विच कंबाइन करके की बना दिंदे ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी वैल्यू हैगी इत्थे रजे नेगेटिव दे विच. Are you getting my point? एंड ये वाला फॉर्मूला आप कर ही चुके, ये भी इंपॉर्टेंट है. आप पहला सिंपल किया सी. सो जो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन हुंदा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये किदे इक्वल होगा? enthalpy change, enthalpy of products minus enthalpy of reactants आप पढ़ चुके सी. और आप enthalpy change ओवरली रिएक्शंस दिखा रहे हैं जिथे कुछ फॉर्म हो रहा था. इथे enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactant. So enthalpy change of formation of different reactant and products अगर थोनू given होगा ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ enthalpy of change in enthalpy of reaction है ਉਹਦੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਉਹ फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. सो नेक्स्ट हैगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. हुण आपां की पढ़ के हटे आ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सिमिलरली अगर कोई इदां दी रिएक्शन होवे जिहदे विच की होवे कंबस्शन होवे किसी भी चीज दी, सो ओदे करस्पॉन्डिंग जिहड़ी इंथैल्पी होगी ओनू आपां किस वे दे नाल रिप्रेजेंट करांगे जी? इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दे नाल. अगर ओदी स्टैंडर्ड कंडीशन है तो आपां नू लिखांगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. It is represented by delta HC naught. पहला मैं इत्थे F लगाया सी, ओ enthalpy of formation सीगी. हुण इहदी एक एग्जांपल लैने आ. एग्जांपल हैगा अगर कार्बन दी एलोट्रोपिक फॉर्म ग्रेफाइट ले लो. Suppose 1 mole of graphite, if it is completely burned, means वो जल गया completely. बर्न मतलब ਉਹਦੀ कंबस्शन होगी. सो कंबस्शन रिएक्शन ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ਹੁੰਦੀ है जी. सो ये कंबस्शन रिएक्शन होगी. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ H ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਵੈਸੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? -393.5. ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 네ਗੇਟਿਵ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? दिस इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी. ए वाली जिहड़ी इंथैल्पी है रजे ये किदे करस्पॉन्डिंग है? जिथे कार्बन दी की हो रही है? कंबस्शन हो रही है. सो आप इहनू रिप्रेजेंट करांगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन विच एलोट्रोपिक फॉर्म ग्रेफाइट. कितनी वैल्यू है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट इज -393.5 किलोजूल पर मोल दियां यूनिट्स ने. सो आप इहनू रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस वे दे नाल. सो दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक टू अंडरस्टैंड दैट. एक जनरल जे पॉइंट है कि जिन्नियां भी कंबस्टन रिएक्शन हुंदियां ने वो हमेशा की अकर हुंदियां ने बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट. मीनस वो एक्सोथर्मिक हुंदियां ने, इस करके उन्हां दे विच की हुंदा नेगेटिव साइन. सो अगर इहदी डेफिनेशन अगर मैं थोड़ा डेफिनेशन इहदी समझावां तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की हुंदी है? इट इज द इंथैल्पी चेंज
इंथैल्पी चेंज मीनस कितनी अमाउंट ऑफ जिहड़ी हीट आ उत्थे इवॉल्व होगी या फिर अब्जॉर्ब होगी, कदों होगी, when 1 mole of a compound under standard condition is completely burnt with the required amount of oxygen to form products in their standard condition। मीन सिंपल है रजे, इहदी तुसी मतलब इहदी टॉपिक तो भी इहदी डेफिनेशन बना सकते हो। स्टैंडर्ड लग्या होया तो मतलब जिहड़े रिएक्टेंट्स ने ते प्रोडक्ट्स ने वो स्टैंडर्ड कंडीशंस दे विच होने चाहिए ने, ते 1 मोल ऑफ जिहड़ा मतलब एलिमेंट है ओदी ही की होनी चाहिए है, कंबशन हुंदी है। सो दिस इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। So this is the important topic which I want to discuss with you, that is enthalpy of neutralization। So ये तो तुसी रजे सिंपल किता होगा, तुहानू पता होगा जिहड़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओ की हुंदी है। इन्ना तो सब नू पता होगा कि जदों आपां एसिड दे विच बेस दी एडिशन करते हैं, then there is a formation of salt plus water। so ਉਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिस दे विच एक एसिड होवे एक बेस होवे, दोनों कंबाइन करके मींस दोनों न्यूट्रलाइज हो के की बना रहे ने, एक सॉल्ट बना रहे ने ते वाटर बना रहे ने। सो कोरोस्पोंडिंगली एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दी की डेफिनेशन होगी। सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? The enthalpy of neutralization of an acid by a base is defined as enthalpy change। enthalpy change means usually reaction ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਇਵੋਲਵ ਹੋਗੀ। when condition देखो रजे, condition important है, when 1 gram equivalent of acid is completely neutralized by base। so condition ए हैगी आ, एक ਤਾਂ ਇਹ condition है कि ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ acid होगा ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ग्राम इक्विवेलेंट। एक की होगी जिहड़ी आपां रिएक्शन कर रहे हैं वो किहदे विच होगी डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन दे विच। मींस एसिड भी एक्वियस होगा, बेस भी एक्वियस होगा, ते जिहड़ा एसिड है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर अपना जिहड़ा बेस है वो भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाए तां भी जिहड़ी एंथैल्पी है वो की होगी न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो यदि एक जनरल रिएक्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड ते स्ट्रॉन्ग बेस दी अगर मैं लवां, NaOH इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, एंड HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। सो एसिड सॉरी बेस प्लस एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है NaCl प्लस वाटर लिक्विड फॉर्म दे विच। एंड इसके कोरोस्पोंडिंगली डेल्टा H की वैल्यू है -57 पॉइंट, कई बुक्स दे विच 32 लिखा होया, कईयां दे विच लिखा होया -57.1। तुसी कोई भी कर लो रजे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जिहड़ी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ते स्ट्रॉन्ग बेस दे विच लै रहे हैं, पॉइंट 2 भी नोट डाउन, अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड दे विच जिहड़ी आपां रिएक्शन करवा रहे हैं ते ओदे कोरोस्पोंडिंगली जिहड़ी एंथैल्पी चेंज है ओदी वैल्यू फिक्स होगी। तुसीं रजे आह कर लो 57.1, सो ओदी वैल्यू फिक्स होगी, कितनी होगी 57.1। ठीक है। इट इज ऑलवेज इक्वल टू दिस टर्म। सो व्हाई इट इज सो, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ क्यों ਹੁੰਦਾ कि ਜਿਹੜਾ स्ट्रॉन्ग एसिड ਤੇ स्ट्रॉन्ग बेस ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ਦੀ वैल्यू फिक्स क्यों ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜੇ? बिकॉज ਜਿਹੜਾ स्ट्रॉन्ग एसिड है ਤੇ स्ट्रॉन्ग बेस है ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਡਾਇਲੂਟ एक्वियस सॉल्यूशन। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕੰਪਲੀਟਲੀ डिसोसिएट मींस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, सारे डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन दे विच हैगे ने, प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। मैं इसी रिएक्शन नू इस फॉर्म दे विच भी लिख सकती हां। क्यों लिख रही हां? बिकॉज आपां स्ट्रॉन्ग एसिड ते स्ट्रॉन्ग बेस लैते ने, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड ते स्ट्रॉन्ग बेस ते उन्हां दे कोरस्पोंडिंग जिहड़ा सॉल्ट बनदा वो सारे की हुंदे ने
these all are completely ionized in dilute aqueous solution. So after ionization of this strong base, it converts into Na positive and OH negative. Similarly, HCl, it ionizes into H positive and Cl negative. And this salt, it ionizes into Na positive plus Cl negative plus this water remains as such. So what happens, Na positive and Na positive, ये cancel out हो जाएंगे. Similarly, Cl negative, the Cl negative भी की हो जाएंगे, cancel out. So the final equation, it remains only H positive और OH negative. हाँ जी, H positive and OH negative. It forms water. So this is the neutralization reaction. अगर थोनों कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखन दे लिए क्या दिंदा स्ट्रॉन्ग एसिड ते स्ट्रॉन्ग बेस दी तो जनरली स्टूडेंट्स यही रिएक्शन लिखते हैं. वैसे एग्जैक्ट रिएक्शन है यही, बट यही रिएक्शन नू आप मॉडिफाई करके इस फॉर्म दे विच भी जिहड़ी है लिख सकते हैं. इवन कि आई थिंक दिस फॉर्म इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू इक्वेशन फर्स्ट, बिकॉज इक्वेशन सैकेंड है जिहड़ी रजी वो एग्जैक्ट इक्वेशन है ना, इन्हों आप इस फॉर्म से नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज इहदी प्रॉपर्टी हुंदी है कि जिहड़ा स्ट्रॉन्ग बेस हो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए. सो आफ्टर आयोनाइजेशन द फाइनल इक्वेशन बिकम्स दिस. सॉरी, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट, दिस इज द फाइनल इक्वेशन. सो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दी जिहड़ी हुण मॉडिफाइड डेफिनेशन है वो की होगी. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव इन aqueous state in dilute solution are incompletely neutralized by OH negative ion to form 1 mole of what is this? This is undissociated molecule. ठीक है जी. सो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥਰੂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆਫ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਬੇਸ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਤੇ ਬੇਸ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ. ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ एसिड ते बेस दोनों दे विचों अगर एक की होवे वीक होवे. ठीक है. सो अगर केड़ा केस लवांगे आपां? नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन केस आइदर दी एसिड और बेस or maybe both or maybe both are weak. पहला आप स्ट्रॉन्ग वाला केस पढ़िया सी. हुन की है अगर एसिड या फिर बेस या फिर दोनों ही की हुन वीक होन, देन की होगा रजे? द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज लेस देन 57.1 is usually less than 57.1 kilojoule per mole. Why it is so? Because ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ completely ionize ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, but ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਗਾ अगर आप कंसीडर कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड which is weak acid with NaOH which is a strong base. So what happens? एसिटिक एसिड जिहड़ा कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुंदा, इस करके इत्थे आपां इक्विलिब्रियम दा साइन है जिहड़ा वो शो करना. ये आयोनाइज होगा CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव एंड NaOH जिहड़ा स्ट्रॉन्ग बेस आ वो कंप्लीटली जिहड़ा स्प्लिट हो जाएगा Na पॉजिटिव ते OH नेगेटिव. सो हुण इस केस दे विच की होगा रहे कि जिहड़ा ये मतलब एसिटिक एसिड है ਉਹ ਜਿਹੜੇ H पॉजिटिव आयन्स ने है ना ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਊਗਾ, मींस ਜਿਹੜੇ एसिड तो H पॉजिटिव आयन आ रहे ने ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ OH नेगेटिव ਦੇ ਨਾਲ.
फिर की बना देंगे, वो वाटर बना देंगे। बट जिवें जिवें H पॉजिटिव OH नैगेटिव दे नाल मिल के वाटर बनाऊगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋगा सिमिलरली ਜਿਹੜਾ ਦਾ फर्स्ट इक्वेशन ਦਾ इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ली-चैटियर प्रिंसिपल, बिकॉज आप H पॉजिटिव बाहर काट रहे हैं। सो इस करके जो इक्विलिब्रियम है वो टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स मोर ऑफ एसिटिक एसिड की है डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ मतलब अ पार्ट ऑफ, ये तुसी नोट डाउन कर लो, मीन्स की है सम पार्ट, या फिर आप लिख सकते हैं अ पार्ट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ H positive and OH negative is used up for complete dissociation of acetic acid। समझ रहे हो ना, पहला की सीगा जे दोनों स्ट्रॉन्ग सी, इस करके कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा तो H पॉजिटिव तो OH नेगेटिव दी एंथैल्पी चेंज की सी 57.1। इस केस दे विच अगर आपां वीक, ए आपां की ले रहे हैं वीक एसिड दी, अगर आपां स्ट्रॉन्ग बेस दे नाल जिहड़ी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवावांगे ते उत्थे जिहड़ी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ओदी वैल्यू हमेशा लेस देन होगी 57.1। व्हाई इट इज सो, बिकॉज इस केस दे विच रहे जदों H पॉजिटिव ते OH नेगेटिव दी जदों कंबीनेशन होगी तो कुछ जिहड़ी हीट आ वो यूज्ड होगी फॉर अ कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, बिकॉज एसिटिक एसिड वीक एसिड है। सो इस करके इत्थे जिहड़ी इहदी वैल्यू है वो लेस देन हुंदी है, बिकॉज जिहड़ी ये रिएक्शन हुंदी है इहदे विच डेल्टा H मींस इहदी डिसोसिएशन करन दे लई आपां नूं कितनी एंथैल्पी चाहीदी है 2.09। ये तो स्ट्रॉन्ग ही है, इहदी तां कितनी होगी 57.1। सो ओवरऑल जदों आपां करांगे तां ओवरऑल इहदी वैल्यू कितनी आऊगी, जिहड़ी एग्जैक्ट सी 57.1 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कितनी यूज होगी प्लस ही लिखोगे, बिकॉज प्लस ही है दी वैल्यू कितनी जिहड़ी वो यूज होगी डिसोसिएशन करने दे लई, तो फाइनल जिहड़ी वैल्यू है वो कितनी आऊगी 55.2 किलोजूल पर मोल। ओके, सो ये सीगा इंपॉर्टेंट कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दी वैल्यू लेस देन हुंदी है इन केस ऑफ इधर एसिड और बेस और बोथ आर वीक। सो हुण तुसीं पॉइंट नोट डाउन कर लो, एक दो पॉइंट्स ने जिहड़ी एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो हमेशा रजे 1 ग्राम इक्विवेलेंट दे कोरस्पॉन्डिंग ही हुंदी है। मीनस जिहड़ा आपां एसिड ले रहे हैं वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही होगा, बिकॉज जिहड़ी न्यूट्रलाइजेशन हुंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिहड़ी फाइनल कीती सी H पॉजिटिव ते OH नेगेटिव वाटर, मीनस इत्थे कितना है 1 मोल, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ਲਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 1 मोल ਆਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव विद 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव। सो इस करके ਆਪਾਂ रिएक्शन कंडीशंस ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, बिकॉज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 मोल प्रोड्यूस करूगा। ਤੁਸੀਂ 1 मोल नहीं ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ एग्जांपल ਲੈ ਲਓ सल्फ्यूरिक एसिड ਦੀ, ठीक है। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लिया, ये तो सही है जी, क्योंकि उतो 1 मोल है जिहड़ा वो की हो जाऊगा H पॉजिटिव जिहड़ा वो प्रोड्यूस हो जाऊगा। बट अगर आप इत्थे 1 मोल ले लांगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड की जगह ते अगर तुसी 1 मोल ऑफ H2SO4 ले लो, सॉरी मैं गलत कह रही हूँ, जो तुसी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, हाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही लेना, इत्थों की होगा 1 मोल प्रोड्यूस होगा। बट अगर आप इत्थे 1 मोल ले लांगे तो इत्थों तुसीं देखो 1 मोल है, तो 1 मोल दे विच H हाइड्रोजन किन्ने ने 2 ने, तो इत्थों जिहड़े की ने प्रोड्यूस होणगे 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव। इस करके आप हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट लेना।